Welcome to Marketing Simplified, your step-by-step guide for marketing officer exams. My name is Saurabh Juneja, and in this series of videos, I'm going to take you through the book of Principles of Marketing's latest edition by Mr. Philip Kotler. So if you're preparing for IBPS SO marketing officer's examination or any other marketing officer examination for any public sector enterprise, this is the series for you to follow. तो यदि आप IBPS SO मार्केटिंग ऑफिसर के एग्जाम के लिए या फिर किसी भी मार्केटिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए किसी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के लिए स्केल 2 या स्केल 3 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए मस्ट है. दिस वीडियो सीरीज हैज अ चैप्टर वाइज कवरेज फॉर ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक. तो इस वीडियो सीरीज में चैप्टर वाइज कवरेज है सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का इस किताब के. Also, these videos will be explained in two languages, Hindi and then English. साथ ही साथ सारे के सारे वीडियोस में दोनों भाषाओं में कवर करूंगा, इंग्लिश और बाद में हिंदी. तो सारे वीडियोस में पहले इंग्लिश होगा और वही एक्सप्लेनेशन बाद में हिंदी में होगा. So all the videos will have the explanation in Hindi followed by the same explanation in Hindi language. So you can follow me on Telegram, YouTube, and you can also download our application from Play Store and visit our website and on other social media platforms. All the very best, and let's get started. So guys, hello again, and this would be part 4 of chapter number 1. Chapter number 1 deals with creating customer value and engagement. And within this chapter, in this lecture, we will be discussing around what is customer lifetime value and what do we mean by customer equity. So what is the importance of customer loyalty and retention? So before we talk about customer equity or the customer lifetime value, we need to understand the difference between these two things. What do we mean by customer loyalty and customer retention? So creating customer loyalty and retention is the topmost goal of any marketer. Why? Because the more the customer stays with us, the more the customer is loyal towards our products and brands, obviously the more likely is for him to spend money on our products. So good customer relationship management creates customer satisfaction. So if you're maintaining a very good relationship with the customer, obviously customers would be satisfied, and these satisfied customers, if they remain loyal with the company or the products of the company, they talk about your brand in a favorable manner, right? So they will be talking positive about your brand, your products to the other people, and about the company as well and its products. What happens next? Even a slight dissatisfaction can create an enormous drop in loyalty. So if a loyal customer has a bad or a poor experience with a product or a service, he or she might become dissatisfied, and the same favorability would turn into unfavorable experience, right? So researchers have also shown that it's almost 5 times cheaper to keep an old customer than to acquire a new one. So if it costs you to say rupees 100 to retain an existing customer, it would almost cost you rupees 500 to have a new customer on board. So that is why it is always sensible to retain the existing customers than looking out for new ones. But that does not mean that you don't look out for the new ones altogether. The idea is that you need to keep the existing customers with you and at the same time keep looking for new and more customers. So there is a difference between customer retention and customer loyalty, where customer retention is only about ensuring that there is a repeat purchase, right? So retention is when the customers will buy from you again, when they will come back to you to get those services and products again and again. But when you talk about customer loyalty, it will basically, it talks about the customers will not only buy from you, but at the same time they will support you and get more customers for you as well. So there are 3 important concepts that we need to take care into mind. The number 1 is customer defection. Customer defection is that if the company is losing the customers, right? So suppose if the customers are leaving your product or your services, so they will become defection, right? So customer defection means losing the entire stream of purchases that the customer would be making over a lifetime or a patronage. Suppose I have taken a Airtel connection and I have a bad experience with the Airtel connection, right? And I almost recharge my mobile phone with say 500 rupees a month. In a year, I would end up making, I would be ending up spending around 6,000 rupees, right? But if for any reason I wish to move away from Airtel, so the Airtel company would basically have a loss of revenue to the tune of 6,000 rupees per annum. And say suppose if my average lifetime value with the customer, my lifetime period with the customer would have been 10 years or 20 years. So 6,000 multiplied by 10 or 20 is the total customer defection cost the customer would be bearing. And that is why we also consider customer lifetime value.
So to calculate how much of the revenue loss because of the customer defection companies are making, or to also to understand how much revenues can they basically make out of a single customer, the concept of customer lifetime value is very important. So it is the value of the entire stream of purchases a customer makes over a lifetime or a patronage. So if I had been a customer with the Airtel throughout my life, it would actually mean that I would end up maybe procuring other products from Airtel also. I might have gone with the broadband, I might have gone with an international roaming or other services as well. So over here, the agenda of the companies is to increase the share of customer. What do we mean by share of customer? It is the portion of the customer's purchasing that a company gets in its product categories. So if I say, if I am flying 20 times a month, or if I'm flying 20 times in a year, 20 times a month will be too much. So if I'm flying 20 times in a year and I opt for maybe say 5 to 6 different airlines, so each of these airlines would wish to have me as their customer, as a passenger, more than anybody else. So if I'm spending say 1 lakh rupees on these 5 different airlines, on an average 20,000 rupees per airline across 20 different trips, and if one company does well and I tend to give my share of sales to one company in comparison to the other one, my share of customer, the company share of customer, would basically increase. So it basically sums up to building customer equity. So what do we mean by customer equity? Before we understand customer equity, it's very important for us to understand that the ultimate aim for the customer relationship management is to produce high customer equity. High customer equity would basically come when the company has the customer with them for as long as possible. So customer equity is the total combined customer lifetime values of all the company's current and potential customers. Current customers and the customers which would be coming in future. So all the customers, all lifetime values put together to be total will be the customer equity for that particular company. So the value of a company comes from the value of its current and future customers. Obviously, these customer equity will basically culminate into the value for the company. So we can say that customer equity is a measure of all the future value of company's customer base. Customer base means the current customers and the potential customers for the company. So the more loyal the firm's profitable customers are, the higher is its customer equity. So in the last, we can just revise by seeing that the customer equity is equal to the sum of all the current and future customer lifetime values, and CLV is the abbreviation for customer lifetime value. So that's it on customer equity, customer retention, and customer defection, and I'm going to catch you up with the next part very soon. Till then, bye bye, God bless you. And if in case you wish to know more about the paid video course or the complete video course, you can check out the link in the description. You can also call the number. Other details of the course are given on the screen. चलिए अब हिंदी में चर्चा करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 4 की, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 हमारे लिए जो है वो कस्टमर क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू और एंगेजमेंट की बात करता है, और इस लेक्चर में हम बात करेंगे कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू और कस्टमर इक्विटी की। इन दोनों कंसेप्ट्स को समझते हैं एक एक करके, लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि अच्छी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू और अच्छी कस्टमर इक्विटी के लिए सबसे पहला जो काम हमें करना है वो ये है कि हमें एक अच्छा कस्टमर लॉयल्टी और एक अच्छा रिटेंशन बिल्ड करना है। तो अगर कस्टमर लॉयल्टी और रिटेंशन बिल्ड करना है तो ये किसी भी मार्केटियर का टॉप मोस्ट गोल होता है। कोई भी कंपनी, उसकी मार्केटिंग टीम चाहेगी कि कस्टमर उनके संग ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रहे, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक उनको रेवेन्यूज़ दे, बार बार उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को खरीदे। तो एक अच्छा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का जो भी प्रोग्राम है या ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्रिएट करें। जितना ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा वो आपके साथ ही जुड़ा रहेगा। तो अगर सेटिस्फाइड कस्टमर होंगे तो वो आपके संग लॉयल रहेंगे और आपके बारे में पॉजिटिवली बोलेंगे, बाकी के कस्टमर्स को मार्केट में एक पॉजिटिव आपका फीडबैक देंगे, जिससे कि कंपनी और उसके प्रोडक्ट्स को आगे जाके बेनिफिट होगा। इसी को हम पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ भी बोलेंगे। तो लॉयल कस्टमर्स जो हैं वो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ भी जनरेट करते हैं। अगर ये लॉयल कस्टमर्स हल्के से भी डिससेटिस्फाइड हों तो यहाँ पर इनकी लॉयल्टी में डेंट आ सकता है, इनकी लॉयल्टी गिर सकती है, और जब वो लॉयल नहीं रहेंगे या उनकी लॉयल्टी नेगेटिव साइड चली जाएगी तो जाहिर सी बात है वो फेवरेबल भी फिर नहीं रहेंगे।
रिसर्च ये बोलती है कि 5 गुना सस्ता है किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर को अपने पास रोक के रखना उसकी जगह नए कस्टमर को ढूंढने के कंपैरेटिवली। हालांकि ये बात भी है कि कस्टमर्स को लगातार नए कस्टमर्स को ढूंढते ही रहना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको भी रोकने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर 100 रुपये आपके खर्च हो रहे हैं किसी एक एग्जिस्टिंग कस्टमर को अपने साथ रोकने में, वहीं पर नए कस्टमर को ढूंढने में आप जो है 500 रुपये खर्च करते हो। तो ये जो है रिसर्च कहती है। यहाँ पर एक छोटा सा और फर्क आपको जानना चाहिए कि कस्टमर रिटेंशन का मतलब होता है कि कस्टमर जो है बार बार आपसे सर्विसेज और प्रोडक्ट्स लेगा आपके, लेकिन कस्टमर लॉयल जब रहेगा तो कस्टमर लॉयल जो लॉयल कस्टमर्स होते हैं वो आपको ना केवल आपसे खरीदेंगे बार बार, आपको सपोर्ट भी करेंगे और आपको और भी कस्टमर्स दिलाएंगे, क्योंकि वो आपकी बढ़ाई करेंगे, आपके लिए फेवरेबल बात बोलेंगे। तो अब ये 3 कंसेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ानी है, कस्टमर की इक्विटी बढ़ानी है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी कंपनी में कम से कम कस्टमर डिफेक्शन हो। कस्टमर डिफेक्शन का मतलब है कि जो कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को छोड़ के डिससेटिस्फैक्शन के चलते या किसी प्रॉब्लम के चलते किन्हीं और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ले लेते हैं। तो कस्टमर डिफेक्शन, जैसे मान लो कि मैं अभी एयरटेल का कनेक्शन यूज़ कर रहा हूँ और मैं अपना मोबाइल फ़ोन का खर्चा मेरा जो है वो 500 रुपये महीने का है। साल भर का मेरा खर्चा करीब हो गया 6,000 रुपये। अब मान लीजिए कि मैं एयरटेल के संग अगर कोई दिक्कत नहीं होती तो 10 या 15-20 साल और रहता, तो 6,000 को मैं अगर 20 से मल्टीप्लाई करूँ तो कंपनी को मुझसे 1,20,000 अमूमन का रेवेन्यू मिल जाता। अब अगर मेरी एक्सपीरियंस एयरटेल से कभी ख़राब हो जाए और मैं एयरटेल छोड़ के जियो या वीआई की तरफ चला जाऊँ, तो जाहिर सी बात है ये 1,20,000 का जो है कस्टमर डिफेक्शन कॉस्ट हो जाएगा, यानी कि कंपनी को इतने पैसे का नुकसान हो जाएगा। तो अगर कस्टमर डिफेक्शन होगा तो कंपनी जो है लूज कर देगी एंटायर स्ट्रीम ऑफ परचेजेस। स्ट्रीम ऑफ परचेजेस का मतलब भविष्य में जितने भी पैसे खर्च करता है एयरटेल के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में, उन सब का टोटल वैल्यू, एंड द कस्टमर वुड मेक ओवर अ लाइफ टाइम ऑफ पेटर्नेज। तो जितना मैं पूरे लाइफ टाइम में कस्टमर बन के एयरटेल पे पैसा खर्च करता, वो पूरा का पूरा एक तरीके से नुकसान हो जाएगा। यहीं से बात आती है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू की। तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को हम बोल सकते हैं इट इज़ द वैल्यू ऑफ द एंटायर स्ट्रीम ऑफ परचेजेज अ कस्टमर मेक्स ओवर अ लाइफ टाइम ऑफ पेट्रोनेज। तो जो 1,20,000 रुपये मैं एयरटेल पे खर्च कर रहा था, 6,000 रुपये पर साल इंटू 20 साल, तो 1,20,000 रुपये मैं खर्च करता, तो यही मेरी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कहलाएगी। अब बात आती है कि कंपनीज चाहेंगी कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू भी बढ़ाई जाए, इसको बढ़ाया जाए, डिफेक्शन को कम किया जाए, साथ ही साथ शेयर ऑफ कस्टमर को भी बढ़ाया जाए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि मैं अगर साल भर में 20 बार फ्लाइट लेता हूँ और हर फ्लाइट मेरी 5,000 रुपये कॉस्ट करती है ऑन एन एवरेज, तो 1,00,000 रुपये जो है मैं अपनी हवाई यात्रा पे खर्च कर रहा हूँ साल में। अब ये 1,00,000 रुपये मैं 5 अलग अलग कंपनियों के पे फ्लाई करता हूँ, कभी विस्तारा ले लेता हूँ, कभी गो एयर ले लेता हूँ, कभी स्पाइस जेट ले लेता हूँ, कभी इंडिगो ले लेता हूँ, इस तरीके से। अब अगर विस्तारा मेरे को रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन करती है मेरे साथ और मैं जो पैसा खर्च करता हूँ गो एयर पे या इंडिगो पे, उसमें से भी कुछ खर्चा मैं विस्तारा की तरफ करने लगूँ, तो तो विस्तारा के लिए क्या हो जाएगा कि उनके पास जो है शेयर ऑफ कस्टमर बढ़ जाएगा। सो इट इज़ द पोर्शन ऑफ द कस्टमर्स परचेजिंग दैट अ कंपनी गेट्स इन द प्रोडक्ट कैटेगरी। तो जितनी भी फ्लाइट है, अगर मान लीजिए कि 1,00,000 रुपये मैंने खर्च किया और विस्तारा पे अकेले मैंने 40,000 रुपये खर्च कर दिए, तो मेरा शेयर ऑफ कस्टमर हो जाएगा 40% विस्तारा के लिए। ये भी इस तरीके से जो भी पैसा ये बंदा खर्च कर रहा है हवाई यात्रा पे, उसका 40% तो केवल मेरे पर खर्च कर रहा है, मेरी कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में। तो कंपनीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यही बात को ध्यान रखना कि कस्टमर डिफेक्शन जो है वो कम से कम हो, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो और शेयर ऑफ कस्टमर भी बढ़ाएं। चलिए, अब आती है लास्ट में बात कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कंपनी के को जो है बेहतरीन कस्टमर इक्विटी मिले। जैसे कि ये 5 स्टार आप देख रहे हैं, बस 4 की जगह 5 स्टार ऐड होने वाले हैं, तो इसी वजह से आप बोलेंगे कि अल्टीमेट एम ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है, इट इज़ टू प्रोड्यूस हाई कस्टमर इक्विटी। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर इक्विटी हम जो है जनरेट करें, क्रिएट करें। अब कस्टमर इक्विटी क्या है? कस्टमर इक्विटी जो है इज़ दी total combined customer lifetime values of all of the company's current and potential customers। तो जितने भी कस्टमर्स हैं उन सब की टोटल कंबाइंड लाइफ टाइम वैल्यूज को जोड़ दूं, तो और किनकी, करंट कस्टमर्स की भी और भावी यानी कि पोटेंशियल कस्टमर्स की भी, तो वो हो जाएगा कस्टमर इक्विटी।
तो हम बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ अ कंपनी बेसिकली कम्स फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इट्स करंट एंड फ्यूचर कस्टमर्स, क्योंकि करंट एंड फ्यूचर कस्टमर्स ही कस्टमर इक्विटी देंगे, और जितनी ज़्यादा कस्टमर की इक्विटी होगी उतना ही कंपनी को जो है वैल्यू मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि कस्टमर इक्विटी एक का फॉर्मूला या का डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ मेजर ऑफ द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द कंपनीज कस्टमर बेस। तो कस्टमर इक्विटी क्या है, इट इज़ अ मेजर ऑफ द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द कंपनीज कस्टमर बेस। तो यहाँ पर सीधा सीधा बातें निकल के आती है कि जितना लॉयल जो है कोई कस्टमर फर्म के लिए रहेगा उतना ही प्रॉफिटेबल रहेगा और उतनी ही उसकी कस्टमर इक्विटी भी हाई रहेगी। तो लास्ट में हम बोल सकते हैं कि कस्टमर इक्विटी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल करंट एंड फ्यूचर कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यूज। उदाहरण के तौर पे थोड़ा देर पीछे जाएं, 1,20,000 मैं खर्च करता एज ए सिंगल कस्टमर, वो मेरे जैसे अगर 1,00,000 कस्टमर्स हो जाएं तो आप आगे जाके इसको फिर से 1,00,000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पार्ट नंबर 4। मैं आपको अगले पार्ट के संग ज़रूर मिलूंगा और अगले पार्ट में मैं आपको और भी इनपुट्स दूंगा जहां पर हम और भी चैप्टर 1 के कंसेप्ट को समझेंगे। यदि आप किसी भी ऑफिसर मार्केटिंग ऑफिसर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, भले ही वो IBPS SO मार्केटिंग ऑफिसर की हो या RRB के जॉब की हो या किसी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में मार्केटिंग ऑफिसर की जॉब के लिए हो, तो मेरे पास आपके लिए बहुत सारे क्यूरेटेड कोर्सेज हैं जिनके डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और अब ये कोर्सेज आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे। हाँ जी, इंग्लिश मीडियम कोर्स तो है ही, जिस तरीके से मैं अभी आपको हिंदी में लेक्चर दे रहा हूँ, इस कोर्स में आपको सारे के सारे लेक्चर्स हिंदी में मिलेंगे। कंटेंट भले ही आपको इंग्लिश में मिलेगा, टेस्ट सीरीज और PDFs आपको इंग्लिश में मिलेंगे, लेकिन सारे ही लेक्चर्स मैंने हिंदी में समझाए हैं। बाकी की जानकारी भी आपको यहाँ पर दी गई है, आप नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।